ब्रांच हेड है, कैड हेड है, और जितने भी हमारे कैड हेड है, ब्रांच हेड जुड़े हुए हैं आप हमसे, तो कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि आज का जो चल रहा है आज की डेट में कि हाउ टू एनालाइज बैलेंस शीट, कैसे एनालाइज करनी है बैलेंस शीट, कैसे रेशियोज निकालनी है। क्योंकि आज की डेट में सभी रेटिंग्स जो है, सीएमआर रेटिंग हो गई, कोई भी रेटिंग्स होती है, कोई भी हमने कोई किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेशियोज के ऊपर काफी डिपेंड करता है। तो इट्स अ वेरी बिग टॉपिक फॉर यू। मतलब अच्छा है कि आपने अच्छा एक टॉपिक चुना है इसके लिए कि हमें सबको हेल्प मिलेगी। तो वेलकम यू टू मिस्टर कपिल, अविनाश जी एंड शरद जी। सारस जी, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो ऐसे ही हम आगे भी प्रोग्राम करते रहेंगे आगे। तो मेरी सभी ब्रांच हेड से जो क्रेडिट जुड़े हैं हमसे, तो उनसे यही है कि प्लीज प्रॉपर जो भी आपकी क्वेरीज होगी रेशियोज के ऊपर, यू कैन डिस्कस विद देम। तो यू मे कैरी ऑन नाउ। Yeah, thank you, sir. Sir, I will start. Myself, CA Saraj and Chairman Sonipat branch of NIRC of ICI. सोनीपत ब्रांच ऑफ NIRC ऑफ ICI की तरफ से सभी डिग्नेटरीज का आज बहुत बहुत स्वागत है। बैंक ऑफ बड़ौदा के सारे ऑफिसर्स, रीजनल हेड, डिप्टी रीजनल हेड, हेड SME, क्रेडिट हेड, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। NIRC चेयरमैन सी अविनाश गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करा और ऐसा प्रोग्राम में आए। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर CA कपिल अग्रवाल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ करना चाहूंगा सोनीपत ब्रांच क्या है, क्या कैसे हम वर्क करते हैं, क्या चीज है। सोनीपत ब्रांच हमारी ब्रांच है, इट इज अ पार्ट ऑफ द NIRC। NIRC की फुल फॉर्म नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल। देयर आर 5 रीजनल्स इन इंडिया ICI के जो अंडर गवर्न करते हैं, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल। नॉर्दर्न के अंदर 5 स्टेट्स आती हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड 1 UT चंडीगढ़। आवर अपेक्स बॉडी इज द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICI अपेक्स बॉडी ICI ने लॉन्च करा था फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी ड्राइव ऑन 1 जुलाई 2021 को, टू प्रमोट द फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी ड्राइव एंड to promote the financial planning and tax related guidance by the chartered accountants who will act as a Vittiya Mitra. I am thankful to Shri Satish Kumar Yadav ji, regional head Karnal region, Shri DPS Bhatia ji, deputy regional head Karnal region, Shri RR Prasad ji, head SME loan factory Karnal region, Shri Shwet Gupta ji, credit head Karnal region, who have given us opportunity to organize an awareness program on financial ratios and spending and saving. Now I request Shri Shwet Gupta ji, credit head Karnal region, to speak few words. Very good evening to everyone. I am very thankful to NIRC Sonipat branch of ICI for giving us the for enlightening all our branch heads and various colleagues, credit officers on these particular topics of financial ratios, spending and savings, because these particular financial ratios are very important for us for analyzing the proposal. Because while giving any loans, any financial requirement, we have to analyze the ratios whether they are viable or not. So this is one of the major basic requirement while going to the any proposal, that whether we can go or not with this proposal. So thank you very much, because most of our colleagues or various credit officers are very happy when they were aware about that this topic will be discussed. So they actually want to learn this topic, and we are very happy because this is being said by our Saras Jain ji and Kapil Agrawal. They both are also, I would like to share you that they both are also statutory auditors of our bank. So you might be, some of the branches might be seeing them in April or May. They will be visiting our branch for statutory audit also. So I am very thankful, because these 3 branches, at least we will have sure that they will be very through with the statutory audit. So, but then yes, actually I met them in Kundali branch. They came as our auditor, and truly with their support, their guidance, we were able to do very finely, and slowly they become my friends also, because we belong to the same fraternity of Institute of Chartered Accountants of India, which is one of the most dignified institute and organization of our India, and able to produce the chartered accountants. So thank you, sir. Thank you, Avinash Gupta ji, Chairman NIRC, for giving us the valuable time, and Kapil Agarwal sir, Saras ji. So now I would request Kapil ji and Saras ji that let's get started. Most of the branches have joined, and in the meanwhile we are communicating with them that please join this webinar workshop. And thank you very much for tying up with our association, with our bank. We will try to organize in future also these programs, and thank you very much, sir.
Let's start. Thank you, sir. Thank you, Shwetji. Now we request CA Vinash Gupta ji, our NIS chairman, to speak few words. Thank you. Thank you, Saraj ji. Respected Deputy Regional Head of Karnal Region, Shri DPS Bhatia ji, our own fraternity colleague, Shri Gupta ji, the Credit Head of Karnal Branch, two other dignitaries, Satish Kumar Yadav ji, Regional Head, and RR Prasad Saab, Head of SME Loan in absentia, my Chairman of the Sonipat branch and my younger brother, Saras Jain ji, young and dynamic faculty of the day, Kapil Agarwal ji. As Kapil ji, as our chairman have already briefed you about why we started this finance and tax literacy drive. The one of the objective of this drive is to aware or spread the awareness about various taxation and financial part. Just for your knowledge, last week we have a roundtable meeting with the Deputy Governor RBI, and I myself is present in the meeting. And it's a regular meeting that will be going on between the Institute of Chartered Accountants and RBI. And RBI is sharing their views and their concerns and their inputs on various financial reporting being done by us, either as a branch auditor or as a statutory auditor or as a content auditor. It is the reporting of the bank, not the clients. Then the second part of the meeting is about the proposals that are being accepted by bank and what are the credit lines the bank should work and what is the policy decision to be taken at RBI so that it can be communicated to bank. So all these things we are discussing with RBI on an open mind on a round table. And one thing what we agreed with the RBI is that in future we will do some joint efforts to spread this learnings from each other with our members as well as with the banks. So RBI will take up the same sessions with the banks and we will take up the session with the auditors. So that is what is in principally agreed, though not formally agreed. And I think the Sonipat branch, though they are not present in the meeting, they heard from them and they started even before the RBI started this effort. And under this program, he have done this wonderful job. And ratio analysis as such is one topic which is very, very important from not only from a credit side, but to understand the entire balance sheet and financial. By doing this ratio analysis, we can easily see that whether the client who is coming to you is an actual client or it is merely a window dressing. So that's why while giving credit to anybody, these ratios have a great impact and great importance to do all this credit. So I believe you have a very good faculty today, Kapil Agarwal ji, who is giving his inputs and his experiences. Because as an auditor, whatever you do in 1 year, we have to do it in 3 or 4 days. So what is one thing? What we do is ratio analysis is one. Yes, experience is another. But yes, there are certain tests what we put on the year-end data. So that is what as an auditor we do. I already completed my term of 4 years with Bank of Baroda last year. So we were also the auditor of your bank till 2020. Last year we have been appointed by State Bank. So we are in the State Bank now. So but overall, I believe that this knowledge, if it is to be implemented at the level of sanctioning itself, it will give very good results, not only to the bank as such, but to the public at large, to the fraternity. So that's why it is very important. I congratulate my Sonipat branch and my dynamic chairman of Sonipat branch to take up this particular program, and best wishes to you to conduct this program. My request to Bhatia Saab that we will have these kinds of a program on a regular basis as well, maybe once in a quarter or once in half year, whereby on a round table, we will share our experiences with each other. If you learn something where we need to educate our members, we are ready to do it. If you need our help in educating and improving the skills of your people, we are also available at the Institute of Chartered Accountants of India. So we are set up under an act of the Parliament. We are under the direct administrative control of Management of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs. So we are like you only. So wherever you need our support, we are always available. As an institute, we are available. As a regional council, we are available. As a branch, Sonipat or Karnal or any other branch, we are available to you. With this, thank you very much for inviting me.
and giving me this opportunity to interact with all the branch heads and other officials of your bank, and best wishes for their bright career, and happy new year in advance for the new year which is coming. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Now I request CA Kapil Agarwal ji to please start your technical session. Before starting, first of all, I would like to thanks to the all dignitaries of Bank of Baroda, Chairman NIRC ICICI Avinash Gupta ji and CS Saras Jain ji, Chairman Sonipat Branch, for organizing such a beautiful program and inviting me as a faculty to share my views on the topic financial ratios and spending and savings. Just काफी टाइम ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूं. I have rights, Saras ji, for sharing. Yes, you have rights. First of all, I am going to start the topic analysis of financial ratios, analysis of balance sheet and financial ratios. जैसे ही हम फाइनेंशियल रेशियोज की बात करते हैं, एक बैंक में एक क्रेडिट ऑफिसर के पास, ब्रांच हेड्स के पास कोई भी एप्लीकेंट बोरोइंग के लिए आता है तो एक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर आता है और हमें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके ही उसकी क्रेडिट वर्थनेस निकालनी होती है कि वेदर वी आर एबल टू गिव लोन टू हिम और नॉट. जब भी मैं एक बैलेंस शीट के रेशियोज को डिवाइड करता हूं तो बेसिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंकिंग हम उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: लिक्विडिटी रेशियोज, कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. जैसे ही हम इन रेशियोज की बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट रेशियो सबसे पहले हम बात करें तो लिक्विडिटी रेशियोज की बात आती है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लिक्विडिटी रेशियोज. लिक्विडिटी रेशियोज जब भी अगर हम समझना हो तो एक बैलेंस शीट अगर हमारे सामने है तो इतना तो बेसिक है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होती है और राइट हैंड साइड हमारी एसेट साइड होती है. जब हम लायबिलिटी साइड्स की बात करते हैं तो वहां पर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड इक्विटीज होती हैं. एसेट साइड में डिवाइड करें तो लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं. लिक्विडिटी रेशियोज की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वेदर अ बोरोवर इज एबल टू पे इट्स डेट्स व्हिच इज जस्ट गोइंग टू अकर विद इन नेक्स्ट 12 months. अगले 12 महीने में जितनी भी लायबिलिटीज एक बोरोवर की आनी है, वेदर ही इज एबल टू पे और नो. जो लायबिलिटीज उसकी नेक्स्ट 12 months में अकर होने वाली हैं वो लायबिलिटीज सारी की सारी कहलाती हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और जो लायबिलिटीज आफ्टर दिस स्पैम ऑफ 1 year उसको अकर करनी है वो मेरी आती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में. शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स के, शॉर्ट टर्म एसेट्स के साथ. हाउ मच शॉर्ट टर्म एसेट्स दैट बिजनेस हैव. मेरी शॉर्ट टर्म एसेट्स हमेशा ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज. इतनी ज्यादा वो हम अभी बात करेंगे. इट मींस जो मेरी शॉर्ट टर्म एसेट क्रिएट की गई हैं वो शॉर्ट टर्म एसेट्स शॉर्ट टर्म या तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से क्रिएट की गई हो. अगर मेरी शॉर्ट टर्म एसेट्स ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इट मींस उनको कहां से क्रिएट किया गया, या तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से या इक्विटी से, तभी ज्यादा होंगी. इट मींस मैंने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से या तो लॉन्ग टर्म एसेट शॉर्ट टर्म एसेट बनाई है. ये एक आइडियल सिचुएशन होती है एक बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. जितनी ज्यादा शॉर्ट टर्म एसेट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से क्रिएट होंगी उतना साउंड है एक बोरोवर. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से लॉन्ग टर्म एसेट्स तो गुड होता ही है. एक बिजनेस में फेलियर के कारण क्या होते हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड कर लेते हैं. अगर मैंने कोई भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट किया, दैट इज जस्ट एक मैंने ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट किया है, इट मींस मुझे उस लायबिलिटी को रीपे करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months.
लेकिन मैं उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो एसेट क्रिएट किया है, मैं एबल नहीं हूं 12 मंथ्स में उसको लिक्विडेट करने के, तो मैं कभी भी उस लाइबिलिटी को रीपे नहीं कर पाऊंगा, अल्टीमेटली वो लोन खराब होगा। इसीलिए एज ए बैंकर, एज एन ऑफिसर, हम लोगों को यह भी वाच रखना है कि कहीं जो बैंक से शॉर्ट टर्म फाइनेंस किया गया है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड के साथ, कहीं उससे लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट ना की गई हो। जब भी हम लिक्विडिटी रेशियोज की बात करते हैं तो सबसे पहला रेशियो मेरा आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो सबसे सिंपली है टोटल एक बैलेंस शीट की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का टोटल करते हैं और उनको डिवाइड कर लेते हैं। दैट इज करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जब हम करंट रेशियो की बात करते हैं, स्टैंडर्डली करंट एसेट्स का करंट रेशियो का स्टैंडर्ड होता है 2:1। बट अभी मैं एक बार एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेट सपोज एक कंपनी की करंट एसेट्स है टोटल 600 लाख और उसकी करंट लायबिलिटीज है 300 लाख। कपिल जी, हाँ जी, थोड़ा सा सर मैं इंटरप्ट करूंगा। एक बार ना सर, करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? 3-4 आइटम्स। हाँ सर, अभी बताने वाला हूँ, अभी आऊंगा सर उस पे। वो थोड़ा सा एक बार आप जरूर बताओ। अभी आऊंगा सर उस पे। ठीक है। लेट्स सपोज एक कंपनी की करंट एसेट्स है 600 और करंट लायबिलिटीज है 300, तो मेरी नेट वर्किंग कैपिटल हो गई 300। इट मींस मैंने लॉन्ग टर्म फंड से जो शॉर्ट टर्म एसेट क्रिएट की हैं वो मेरी 300 लाख की हैं। तो मैं करंट रेशियो अगर मैं निकालता हूं तो वहां पर मेरा 600 डिवाइड बाय 300 दैट इज 2:1 आता है। इट मींस अगर मुझे कभी करंट लायबिलिटीज की जो रीपेमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की जो रीपेमेंट करनी है 300 लाख की, उसको रीपे करने के लिए मेरे पास 600 लाख का सोर्स है। वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में अगर मैं 50% भी लिक्विडेट कर लूंगा तो मैं इजीली अपने डेट्स को पे कर सकता हूं। इट इज एन आइडियल सिचुएशन, 2:1 का स्टैंडर्ड रेशियो। अगर मैं 1:1 में है, अगर मेरा करंट एसेट्स भी 300 है और करंट लायबिलिटीज भी 300 है, तो मेरा नेट वर्किंग कैपिटल इट मींस 0 है। मैंने सारा का सारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से ही शॉर्ट टर्म एसेट को क्रिएट किया हुआ है, जो कि एक येलो सिग्नल है कि अगर मैं लिक्विडेट नहीं कर पाऊंगा तो मेरे लिए दिक्कत होगी लोन को रीपे करने के लिए। और अगर मेरा करंट एसेट्स लेस है इन कंपैरिजन टू करंट लायबिलिटीज, तब तो वो रेड सिग्नल है ही। इट मींस मैंने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड किया है। अगर मेरा करंट रेशियो 1:1 से कम आता है तो वो बिजनेस तो रेड सिग्नल पे है, वो तो फाइनेंसिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं है। एक टर्म चलती है करंट रेशियो फिर भी अगर 1.33 से अबव है तो फिर भी एक सेफर साइड में आता है। जनरली अगर हम देखें इन केस ऑफ सीसी लिमिट और इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इन नॉर्मल केसेस बैंक सेज जो मेरा मार्जिन है एटलीस्ट 25% मिनिमम मार्जिन होता है जो होना चाहिए। अगर एक बिजनेस में टोटल फंड की रिक्वायरमेंट 100 लाख है तो 25 लाख का कंट्रीब्यूशन बोरोवर ने किया और 75 लाख का कंट्रीब्यूशन बैंक ने किया। इट मींस जो टोटल 100 लाख की एसेट क्रिएट की उसके अंदर ओनर्स फंड है 25 लाख और बैंक का फंड है 75 लाख। इट मींस 100 लाख की एसेट में से शॉर्ट टर्म फंड 75 लाख का फाइनेंस है और लॉन्ग टर्म फंडिंग 25 लाख। ऐसे केस में अगर मैं करंट रेशियो निकालता हूं तो 100 लाख डिवाइड बाय 75 लाख 1.33 आता है। इसीलिए कहा जाता है कि करंट रेशियो स्टैंडर्ड तो 2:1 है, बट फिर भी अगर 1.33 से ज्यादा है तो वो मैनेजेबल है। अब मैं बात करता हूं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं। जो भी मुझे रीपे करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स वो मेरा करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। वेदर इट इज एनी सन्ड्री क्रेडिटर,
सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी ट्रेड पेबल्स और अदर पेबल्स आते हैं। ट्रेड पेबल्स आर दोस पेबल्स जो डायरेक्टली मैं जिनसे इन्वेंट्री परचेज कर रहा हूं, वो हमेशा मेरे विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आते हैं। अदर पेबल्स में आते हैं मेरे कोई भी एक्सपेंडिचर पेबल, वो सारे के सारे मेरे करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं। बैंकिंग के अंदर अगर मैंने बैंक से कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंस कराया है, सीसी है, ओडी है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई करंट लायबिलिटी। एक चीज और, अगर मैंने कोई भी टर्म लोन बैंक से लिया है, उस टर्म लोन की नेक्स्ट 12 इंस्टॉलमेंट्स, ये ध्यान से सुनिएगा, एक टर्म लोन के अंदर जो भी नेक्स्ट 12 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू है, वो कहलाती हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ ए लॉन्ग टर्म डेट। दैट दीज लायबिलिटीज, दीज 12 इंस्टॉलमेंट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। अगर मुझे अगले एक साल में जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स रीपे करनी है, वो सभी मेरी करंट लायबिलिटी का पार्ट होती है। अब मैं आता हूं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में मेरा जो भी बैंक बैलेंस है, कैश का बैलेंस है, मेरा इन्वेंट्री है, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर है, जो भी मेरा एडवांसेस हैं, वो सभी करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन आता है यहां पर जनरली, एफडीआर, क्या मेरी एफडीआर करंट एसेट्स का पार्ट है या नहीं? यस, एफडीआर्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स until unless these are not in the form of deposits against any bank guarantee or these are not deposits against any government securities। अगर मैंने कोई भी एफडी बैंक गारंटी के अगेंस्ट नहीं दी है और कोई भी गवर्नमेंट डिपॉजिट के अगेंस्ट नहीं दी है, तो वो एफडी भी मेरा करंट एसेट का पार्ट होती है। एनी एसेट विच कैन बी रियलाइजेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months, दैट इज करंट एसेट्स। अब आगे चलते हैं। अगर जैसे कि इस केस में दिख रहा है, मेरे पास 300 की ही करंट लायबिलिटीज हैं और 300 की ही करंट एसेट्स हैं। अगर मैं करंट रेशियो निकालूंगा तो 1:1 आना चाहिए, 300 डिवाइड बाय 300 लैक्स। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करनी है इमीडिएटली और बैंक को भी पेमेंट कर ली इमीडिएटली, तो मेरे पास कैश एंड बैंक बैलेंस अवेलेबल 100 लैक्स और मैं 100 लैक्स की रिकवरी कर सकता हूं अपने डेटर से भी। बट मैं एज ए बोरोवर या एज ए बैंकर दोनों साइड से ही ये इंश्योर नहीं कर सकता कि जो स्टॉक है वो मेरा इमीडिएटली सेल हो जाएगा। इट मे टेक 1 month, इट मे टेक 2 months, इट मे टेक 6 months, इवन इट मे टेक मोर देन 12 months ऑल्सो। बेशक ये करंट एसेट है, बट ये इमीडिएटली रियलाइजेबल नहीं है। इसीलिए हमने करंट रेशियो का एक एडवांस वर्जन आता है, फिर क्विक रेशियो, जिसका दूसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। उस केस में जब हम क्विक रेशियो निकालते हैं तो करंट एसेट्स में से सारा का सारा स्टॉक माइनस कर देते हैं। तो इस केस में अगर मैं क्विक रेशियो निकालूंगा तो एसेट्स लूंगा 300 माइनस स्टॉक, विच रिजल्ट्स इन 200 डिवाइडेड बाय 300, जो कि मेरी आएगी 0.67:1। इट मींस मैं राइट नाउ इसके हिसाब से इमीडिएटली एबल नहीं हूं कि मैं अपने लोन को 100% रिपेबल कर सकूं। इसीलिए कहते हैं कि एटलीस्ट क्विक रेशियो तो 1:1 होना चाहिए। क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड होता है 1:1। एक पॉइंट और होता है, जब हम क्विक रेशियो निकालते हैं, एक करंट एसेट में कभी कभी आपको एक आइटम नजर आएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस होता है मैंने कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया इन एडवांस। नेक्स्ट ईयर का पेमेंट था, मैंने इसी साल में पेमेंट कर दिया, तो वो मेरे लिए करंट एसेट है और इट इज रियलाइजेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months, इसीलिए वो करंट एसेट का पार्ट होती है। बट जब मैंने एक बार पेमेंट किसी को दे दी तो वो वापस लेना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए जब हम क्विक रेशियो निकालते हैं तो करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस करते हैं और करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं।
तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम दो ही रेशियोज निकालते हैं, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। यहां तक अगर लिक्विडिटी रेशियो में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर किसी को बीच में कोई डाउट हो तो वो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। चलो आगे। अब मैं बात करता हूं आपसे डेट इक्विटी रेशियो और टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू। ये रेशियो एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेशियो है जब भी हम बैंक में फाइनेंस के लिए कोई भी प्रपोजल को प्रिपेयर करते हैं। टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू, टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्थ। एक बैलेंस शीट का छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले। एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड की बात बाद में करेंगे। उसका शेयर होल्डर फंड है 100 लाख, बैंक का लोन है 100 लाख, डिबेंचर्स है 100 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 200 लाख, और उस बैलेंस शीट का टोटल है 500 लाख। इट मींस शेयर होल्डर्स ने अपना 100 लाख लगा रखा है, और मार्केट से वेदर इट इज फ्रॉम द बैंक, वेदर इट इज फ्रॉम द एनी आउटसाइड लेंडर, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज 400 लाख की है। इट मींस अगर मुझे बिजनेस में 5 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर करना है तो एज ए बिजनेसमैन मैं अपना 1 लाख ही लगाता हूं और 4 लाख में मार्केट से उठाता हूं। अगर कल को लॉस होगा तो 1 लाख के अगेंस्ट मुझे 4 लाख की लायबिलिटी को रीपे करना है। इट मींस टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 400 lakhs है आउट ऑफ द फंड ऑफ 100 lakhs। इक्विटी सिर्फ 100 lakhs की है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 400 lakhs की है, तो रेशियो कितना बनेगा मेरा? डेट है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी है 400 lakhs की, और इक्विटी का फंड है सिर्फ 100 lakhs। तो मेरा रेशियो बनेगा 400 lakhs डिवाइडेड बाय 100 lakhs व्हिच विल रिजल्ट इन 4:1। 4:1 एक हाई फाइनेंशियल रिस्क होता है। जब भी हम टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू कहते हैं कि 2 से कम होना चाहिए। इट मींस अगर टोटल फंडिंग एक बिजनेस में 303 की रिक्वायरमेंट है तो आउटसाइडर्स लायबिलिटी 2 लाख की होनी चाहिए और ओनर्स फंडिंग 1 लाख की होनी चाहिए। जैसा कि अब एक बैलेंस शीट की हम दोनों पार्ट देख रहे हैं, यहां पर लायबिलिटी साइड भी है और एसेट साइड भी है। ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक बैलेंस शीट है जिसमें शेयर होल्डर फंड है 200 लाख का, एसेट साइड को नहीं देखते, सिर्फ लायबिलिटी साइड को देखते हैं। बैंक का लोन है 100 लाख का, डिवेंचर्स है 50 लाख के, और सन्ड्री क्रेडिटर्स है 150 लाख के। इट मींस अ टोटल 500 लाख। अगर मैं इसमें टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू निकालूं तो आउटसाइडर्स लायबिलिटी है मेरी बैंक लोन की 100 लाख की, डिबेंचर्स की 50 लाख की, और सन्ड्री क्रेडिटर्स की 150 लाख की। इट मींस 100 + 50 + 150 टोटल 300 लाख, और शेयर होल्डर फंड है 200 लाख। अगर मैं टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू निकालूंगा तो 300 लाख डिवाइडेड बाय 200 लाख which will result in 3:2 means 1.5:1, 2 से कम है, जो कि एक अच्छे रेशियो में आता है। बट यहां पर थोड़ा सा विंडो ड्रेसिंग किया हुआ है इस बैलेंस शीट के अंदर, ध्यान से देखिएगा। इस बैलेंस शीट में सबसे पहले आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। इट मींस एक और कंपनी है जिसकी शेयर्स हमारी कंपनी के पास हैं, वो मेरी ही सब्सिडरी कंपनी है। इस बिजनेस में से 50 लाख के फंड तो हमने वहां डाइवर्स किए हुए हैं। तो जो मैंने अपने 200 लाख लगा रखे हैं ना, वो एक्चुअल में 200 लाख नहीं है। इस 200 लाख में से 50 लाख तो मैं दूसरे बिजनेस में ले गया। इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 150 लाख ही लगे। तो जब भी हम टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू निकालते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज कंपनी या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनीज को शेयर होल्डर फंड से माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो पैसा जिस बिजनेस को बैंक लोन दे रहा है उस बिजनेस में नहीं लगा, वो पैसा किसी और बिजनेस में लगा है। तो इस केस में कितनी हो जाएगी फिर इक्विटी शेयर होल्डर फंड? 200 - 50
विच रिजल्ट्स इन 150 lakhs। अच्छा, उसके नीचे चले तो गुडविल नजर आ रही है 50 lakhs की। इट मींस बिजनेस में जो गुडविल होती है वो कैश एडिशन नहीं होता, दैट इज जस्ट अ पार्ट टू इंक्रीज द शेयर होल्डर फंड। इट मींस गुडविल एक नॉन कैश जनरेशन एसेट है। इट मींस जो 150 लाख की मेरी अभी फंड आ रहा है ना, उसमें से 50 लाख गुडविल वाले भी बेकार हैं। ये कोई बिजनेस में पैसा नहीं लगाया, सिर्फ वैल्यूएशन करके वेल्थ को बढ़ा दिया। तो ये 50 लाख भी एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो शेयर होल्डर का फंड अब कितना रह गया? 100 माइनस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी माइनस गुडविल, ओनली 100 lakhs। अब मैं रेशियो निकालूंगा तो कितना रह गया? शेयर होल्डर फंड लूंगा 100, रह गया 300 डिवाइड बाय 100। जो अभी तक मुझे 1.5:1 नजर आ रहा था वो एकदम से 3:1 हो गया। एक्चुअल में 2:1 से ज्यादा तो रेड सिग्नल देता है। अभी इसके अंदर ये 3:1 भी नहीं है। एक चीज और इंफॉर्मेशन है, अब जो ये फिक्स्ड एसेट्स है ना, इनको हमने 50 रुपए से रीवैल्यू एक्सेस में किया हुआ है। जब एक्चुअल में एसेट्स खरीदी थी 100 lakhs की थी, आज हमने अपनी बुक्स में एसेट्स को इंक्रीज करके मार्केट वैल्यू पे ले आए, वो 150 lakhs की हो गई। क्या बिजनेस में कोई कैश जनरेट हुआ? नहीं। इट मींस कैपिटल तो कोई आई नहीं। बेशक मुझे इंक्रीज कैपिटल नजर आ रही है, बट एक्चुअल में वो बोरोवर की कैपिटल नहीं है। तो इसीलिए जब हम टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू निकालते हैं तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी और गुडविल के अलावा अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो उसे भी माइनस करते हैं। अब इस केस में क्या होगा? कितनी रह जाएगी मेरी शेयर होल्डर फंड? 200 माइनस 50 सब्सिडरी वाला, माइनस 50 गुडविल वाला और माइनस 50 रिवैल्यूएशन वाला, ओनली 50 lakhs। अब देखो, शुरू में बैलेंस शीट देखने में जो रेशियो मुझे 1.5:1 लग रही थी, अब कितनी हो गई? 300 डिवाइड बाय 50, 6:1। ये छोटी छोटी चीजें पकड़ के ही आप एक्चुअल में टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू निकाल सकते हैं। ऐसी ही चीजें हैं जिनसे शेयर होल्डर फंड को इंक्रीज किया गया है। हमें पकड़ना है कि शेयर होल्डर फंड में कौन कौन सी आइटम ऐसी हैं जो एक्चुअल में पैसा बिजनेस में नहीं लगा, उनको माइनस कर देना है। इसको हम बोलते हैं टीओएल बाय एडजस्टेड टीएनडब्ल्यू। टोटल नेटवर्थ तो सिर्फ अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूं तो बैलेंस शीट से निकल जाएगी, लेकिन एज ए स्मार्ट ऑफिसर मुझे उसकी एडजस्टमेंट भी आनी चाहिए। जो अभी तक रेशियो मेरी देखने में 1.5:1 थी, एक्चुअल में निकाली तो कितनी आई? 6:1। इट मींस अगर बिजनेस में 7 रुपीज लगे हैं तो ओनर ने अपना सिर्फ 1 रुपया लगाया और 6 रुपया बाहर से लोन ले रखा है। इसमें किसी को कोई डाउट? कपिल जी, हाँ जी। मैं ये थोड़ा सा सबको बताना भी चाहूंगा, बिकॉज हमारे सारे बैंक वाले जुड़े हुए हैं, तो आपने बहुत अच्छे से इस एग्जांपल को डिटेल किया है। और एज पर अवर ग्लोबल एंड क्रेडिट एक्सपोजर पॉलिसी, हमारे यहाँ जो रेशियो है वो टीओएल ऑब्लिक एडजस्टेड टीएनडब्ल्यू ही देखना है आपको, ठीक है। तो आप लोग सभी को जो सर ने बहुत अच्छे से एग्जांपल देके समझाया है कि हमारे यहाँ कौन सा रेशियो चलता है, जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं वो हमें टीओएल ऑब्लिक एडजस्टेड टीएनडब्ल्यू देखना है। नॉर्मली जो हम यहाँ पर एमएसएमई देखते हैं, इस तरीके का देखते हैं, वहां पर आपको ये रिवैल्यूएशन रिजर्व या गुडविल और इस तरीके की आइटम्स नहीं मिलती है, तो बहुत इजी रहता है हमारे लिए। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, अगर आप कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या किसी भी कंपनी को फाइनेंस कर रहे हैं जो कि एमएसएमई का पार्ट है, तो उसमें ये एक आइटम हो सकता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। तो इसे आपको ध्यान से देखना है और बहुत अच्छे से कपिल सर ने जो है इसे समझाया है। एंड आप लोग जो भी प्रपोजल अपने प्रोसेस करते हैं तो ये ध्यान रखें, उसमें लिखते वक्त जब भी रेशियो पे एनालिसिस करें तो उसे टीओएल ऑब्लिक एटीएनडब्ल्यू करके ही आप लोग असेसमेंट करें उसकी, ठीक है। तो आई होप ये सबको अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, एंड बहुत अच्छे से इसे कपिल जी ने समझाया। ठीक है कपिल जी, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर। थंब रूल एडजस्टेड टीएनडब्ल्यू निकालने का यही है, जो भी नॉन कैश आइटम्स मेरे शेयर होल्डर फंड में को इफेक्ट कर रही है वो मुझे सारी माइनस करनी है। अब मैं आगे चलूं। अब हम बात करेंगे इसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज की। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज बेसिकली इफेक्ट करते हैं, हमें वहां पर रिक्वायरमेंट पड़ती है जब भी हम कोई भी सीसी लिमिट या ओडी लिमिट्स के प्रपोजल्स करते हैं। आई होप ये तो आप सभी को पता है, जब भी हम सीसी लिमिट के प्रपोजल्स करते हैं तो बेसिकली सबसे ज्यादा 3 आइटम्स जो इफेक्ट करती हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अंदर, वो मेरी होती है इन्वेंट्री, डेटर्स और कैपिटल। इन्वेंट्री, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अंदर, वो मेरी होती है इन्वेंट्री, डेटर्स और कैपिटल।
और क्रेडिटर्स। ये 3 फिगर्स ही हैं जो सारा वर्किंग कैपिटल लोन्स के अंदर खेल करती हैं। इन्हीं तीनों के बारे में अभी हम थोड़ा थोड़ा एक एक करके पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल रेशियोज के अंदर मैंने 3 बताए, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर और क्रेडिटर्स टर्नओवर। एक क्वेश्चन बहुत आता है जब भी हम बात करते हैं, आपने बोरोवर को सीसी लिमिट दी, वो अपना स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करता है आइदर मंथली और क्वार्टरली और एनुअली एज पर दी बैंक नॉर्म्स। जब भी वो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करता है तो आप उनसे मांगते हैं डेटर्स विद इन अ पीरियड ऑफ आइदर 60 डेज और 120 डेज। इन्वेंट्री कोई ऑब्सोलीट तो नहीं है। बोरोवर्स क्या करते हैं, आपको सारे के सारे डेटर विद इन जितना लिमिट प्रेस्क्राइब होता है उतने का ही बता के सबमिट कर देते हैं। अब ये आपको अपने स्किल्स यूज करने हैं whether these debtors are for that period only और उससे ज्यादा के हैं। ऐसे ही इन्वेंट्री कोई मेरा ऑब्सोलीट तो नहीं है। पहले बात मैं करता हूं आपसे डेटर्स के बारे में। जब भी हम डेटर्स का टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, डेटर्स का टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। वैसे मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। पहली बात, जब भी हम डेटर टर्नओवर निकालते हैं तो ओनली क्रेडिट सेल लेते हैं, कैश सेल को इस पे इग्नोर करते हैं। 2 एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट सपोज एक बिजनेस की एनुअल क्रेडिट सेल 120 लाख की है और उसने जो डेटर्स की स्टेटमेंट सबमिट की उसके डेटर्स हैं 10 लाख के। तो मेरा डेटर्स टर्नओवर कितना हुआ, 120 डिवाइड बाय 10 व्हिच रिजल्ट्स इन 12। इट मींस एक साल में मेरे डेटर 12 बार टर्न आउट हो जाते हैं। इट मींस जो मेरे सन्ड्री डेटर हैं एज ऑन डेट वो सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के हैं, 1 मंथ के हैं। उसको बाइफरकेट करना काफी इजी है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में सेम मेरी क्रेडिट सेल 120 लाख ही है बट मेरा एवरेज डेटर 30 लाख है। अगर मेरा एवरेज डेटर 30 लाख है, इट मींस एक साल में मेरा डेटर कितनी बार टर्न आउट हुआ, 120 डिवाइड बाय 30 विच रिजल्ट इन 4। एक साल में इट मींस 4 बार टर्न ओवर हुआ। 4 बार टर्न आउट हुआ तो इट मींस एक क्वार्टर में 1 बार हुआ। इट मींस मेरा डेटर एटलीस्ट 3 मंथ्स का है। अगर मेरा डेटर टर्नओवर रेशियो इन एक्सेस ऑफ 4 आता है तो इट मींस मेरा सन्ड्री डेटर 90 डेज से ज्यादा का है। उसको मुझे एक्सक्लूड करना है। जो भी डेटर इन एक्सेस ऑफ, वो आपके सैंक्शन टर्म्स ऑफ सैंक्शन पे डिपेंड करता है, आइदर इट में बी 30, 60, 90 और 120 डेज। तो आपको उससे ज्यादा के डेटर्स को कभी भी डीपी कैलकुलेट करते हुए नहीं लेना है। अगर मेरा डेटर टर्नओवर हाई है, इसका क्या मतलब है, इट मींस आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट माई मनी विद इन अ पीरियड ऑफ प्रेस्क्राइब्ड टाइम। इट मींस मेरे बिजनेस में लिक्विडेशन का स्ट्रेन रहता है। इट मींस बैड डेट होने के चांस ज्यादा है और मेरी फाइनेंस की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। हायर द डेटर टर्नओवर रेशियो shows lesser the efficiency of the management. डेटर्स टर्नओवर के बाद हम बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर की। इन्वेंट्री टर्नओवर निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, that is not sale, it is called the cost of goods sold. It means जो मटेरियल मैंने सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी थी। इसको निकालने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं। मेरा ओपनिंग में जो स्टॉक था ड्यूरिंग द ईयर की परचेज और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसमें ऐड करते हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। वो मेरा निकलता है एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और हम उसको डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। एग्जांपल देखेंगे। पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरी कॉस्ट ऑफ सेल थी 120 लाख की और मेरी एवरेज इन्वेंट्री है 10 लाख। इट मींस मेरा जो इन्वेंट्री का टर्नओवर है वो 120 लाख
divided by 10 lakhs, which result in 12 times. It means मैं अपने स्टॉक को एक साल में 12 बार टर्न आउट कर देता हूं. इट मींस जो मेरा स्टॉक एट द एंड है वो मैक्सिमम 30 डेज का होगा, इससे ज्यादा नहीं है. अगर मैं सेकंड एग्जांपल देखूं, सेम केस है, कॉस्ट ऑफ सेल मेरी 120 lakhs है, एवरेज इन्वेंट्री मेरा 60 lakhs है. जनरली हम क्या करते हैं, जब बैंक में सबमिट करना होता है स्टॉक स्टेटमेंट, तो स्टॉक को इंक्रीज कर देते हैं. जैसे यहां मैंने किया हुआ, एवरेज इन्वेंट्री 60 lakhs. इट मींस मैंने कितना टर्न आउट किया, 120 lakhs डिवाइड बाय 60 lakhs, विच रिजल्ट इन 2 times. इट मींस मैंने एक साल में अपने स्टॉक को सिर्फ 2 बार ही रोटेट किया है. इट मींस मेरा जो स्टॉक है वो 12/2 एटलीस्ट 6 months का है. अब उस 6 महीने का स्टॉक निकल गया. इसके बाद आपकी अपनी सोच पर है कि इस असेसी के, इस बोरोवर के बिजनेस में 6 महीने का स्टॉक हो सकता है कि नहीं हो सकता. मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 महीने का स्टॉक गलत होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस. वो आपको समझना है कि क्या इस बिजनेस का स्टॉक 6 महीने का हो सकता है या नहीं. लेट सपोज मैं कोई पेरिशेबल गुड्स में डील करता हूं, ईटेबल आइटम्स में डील करता हूं, तब देखना है कि 6 महीने की तो उसके अंदर एक्सपायरी है. इट मींस जो 6 महीने वाला स्टॉक है वो तो मेरा बिकेगा ही नहीं. वो वैल्यू करना केस टू केस आपके अपने हाथ में है. बट हाँ, इजीली आप ये निकाल सकते हो कि ये स्टॉक कितने पीरियड का है. और इट विल रियली हेल्प यू while you will assessing not only the new proposals but also the existing clients and the clients which are not able to repay your loans. आगे चलते हैं. पहले हमने किया डेटर्स टर्नओवर, फिर हमने किया क्रेडिटर्स टर्नओवर, सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर्स. राइट नाउ अब हम देखेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर. अच्छा, जब भी हम डीपी निकालते हैं एक बिजनेस की, तो हम क्या करते हैं, स्टॉक माइनस क्रेडिटर, पेड स्टॉक आता है, फिर उसमें एलिजिबल डेटर्स को ऐड करते हैं और अपना मार्जिन माइनस करते हैं. क्रेडिटर माइनस करने का कारण, क्योंकि उन क्रेडिटर्स ने ऑटोमेटिकली पहले से ही लोन ही तो दिया है उधारी पे माल देना. अगर बैंक भी उसको फाइनेंस कर देगा तो ये डबल फाइनेंसिंग हो जाएगी. इसीलिए जब भी हम आपकी डीपी निकालते हैं तो स्टॉक में से क्रेडिटर को माइनस करते हैं. ऐसे बोरोवर अगर मैं अपनी स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना चाहूंगा तो मैं अपने क्रेडिटर्स को कम से कम दिखाना चाहूंगा, ताकि मैं स्टॉक में से कम क्रेडिटर माइनस करूं तो मेरी डीपी ज्यादा है. वो भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वेदर क्रेडिटर्स करेक्ट है या नहीं. आप एनुअल क्रेडिट परचेज लीजिए, उसको डिवाइडेड बाय कीजिएगा क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर्स का टर्नओवर आ जाएगा. इट मींस जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में मेरा एनुअल क्रेडिट परचेजेस है 120 lakhs, मेरा एवरेज क्रेडिट है 10 lakhs, तो मेरा क्रेडिटर टर्नओवर होगा 120 lakhs डिवाइडेड बाय 10 lakhs which is 12 times. It means मैं साल में 12 बार अपने एक क्रेडिटर की पेमेंट को रोटेट कर देता हूं. इट मींस मेरा जो क्रेडिटर है वो कितना आउटस्टैंडिंग है, 12 divided by 12 months which is 1 month. इट मींस मेरा जो ये सन्ड्री क्रेडिटर है 1 ही महीने का है. मेरी रीपेमेंट अच्छी है और बिजनेस में लिक्विडिटी का इशू नहीं है. अगर मैं सिमिलरली सेकंड केस देखूं, एनुअल क्रेडिट परचेज है मेरी 120 lakhs, लेकिन एवरेज क्रेडिटर्स कितने हैं 30 lakhs. इट मींस टर्नआउट कितना हुआ 120 lakhs डिवाइड बाय 30 lakhs which is 4. क्या फॉर्मूला बताया था हमने, एनुअल क्रेडिट परचेज, ये मेरा निकल के आया 4 times. इट मींस पूरे साल में मैं 4 बार अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करता हूं, जिसका मतलब हुआ अगर मैं करूं 12 divided by 4 तो मेरा जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो 3 months का है. इजीली हम अपने क्रेडिटर्स को, डेटर्स को और इन्वेंट्री को मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये कितने महीने के हैं. जब भी आप ये कन्वर्ट कर लेंगे तो
सीसी के केस में आपको कभी भी डीपी निकालने में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे चलता हूं। कपिल जी। हाँ जी सर। हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा, सब क्योंकि जुड़े हुए हैं। ये 3 पर्टिकुलर टर्नओवर रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग हम लोग प्रपोजल में इन्हें डालते नहीं है बनाते वक्त, बट इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, जब आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, क्योंकि हमारे बैंक की जो ग्लोबल पॉलिसी कहती है वो ये कहते हैं कि नॉर्मली हम लोग 90 डेज के पीरियड के ही डेटर्स लेते हैं और स्टॉक लेते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन से जो हम बैलेंस शीट एनालिसिस करते हैं उस पर हमें पता चल जाता है एक्चुअल, क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है ना, दैट इज एक्चुअल, है ना। एक्चुअल पोजीशन क्या आ रही है। स्टॉक स्टेटमेंट में हो सकता है कि चीजें आपको कई बार गाइड ना करी गई हो, ठीक है। वो चीज आप कैसे चेक कर सकते हो, वो बैलेंस शीट पोजीशन से आप चेक कर सकते हो कि बैलेंस शीट पोजीशन में क्या उसका टर्नओवर रेशियो सही आ रहा है। बिकॉज आपको वो जब डीपी कैलकुलेशन के लिए देगा तो हमेशा 90 डेज का ही देगा कि डेटर 90 डेज का है, स्टॉक 90 डेज के हैं सारे, तो आपको लगेगा सब गुड़ी गुड़ी है। बट आप जब इस पॉइंट पे देखते हो और आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो आता है कि भैया ये 6 महीने जा रहा है, यानी कि 180 डेज जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, लिक्विडिटी का क्रंच आ रहा है इस पे, या इसके डेटर्स होल्डिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्रंच आ रहा है इस पे। अब जैसे थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल, अभी यहाँ पर सब बैठे हैं तो बताता हूँ। सर लोग जैसे ऑडिट करने जाते हैं तो जो एमएसएमई ब्रांचेस होंगी आप देखेंगे कि उनमें ऑडिट करते वक्त सर लोग की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि आप लोग अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट दिखाइए और स्टॉक स्टेटमेंट दिखाइए जो 31 मार्च का दे रखा है आपको। जब भी आप मैच करके देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा, एंड दैट डिफरेंस शुड नॉट बी देयर। जिस केसेस में ये डिफरेंस आ रहा है आप लोग पहले ही अलर्ट हो जाइए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसमैच है ना। और जहां पर इस तरीके का मिसमैच है इसका मतलब कस्टमर आपको सही स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। अगर थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है तो वो आ सकता है, बट आपकी डीपी कैलकुलेशन एज पर बैलेंस शीट डीपी आनी चाहिए। तो आप लोग सब लोग जितने भी बंदे हैं वो अपनी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट जो भी आज एज ऑन डेट आपके पास ABS 21 की बैलेंस शीट आ गई होगी, उस बेसिस पे 25% मार्जिन लेके आप लोग अपना कैलकुलेट करके रखिए कस्टमर्स का कि भैया उनका डीपी बन रहा है नहीं बन रहा है। जिन केसेस में डीपी बन रहा है इसका मतलब आप सेटिस्फाई रहिए, वो कस्टमर ठीक है, आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको नहीं परेशान करने वाला। ठीक है कपिल जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक सर, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू की है और एक्चुअल टेस्टिंग है, बिकॉज बैलेंस शीट पे एक्चुअल टेस्टिंग होती है ना। तो ये एक तरीका है जिससे आप एक्चुअलिटी देख सकते हैं कि भाई आपका स्टॉक स्टेटमेंट ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है ना। और सब बड़े केसेस में आप लोगों को CA सर्टिफाइड बुक डेट स्टेटमेंट लेना है। स्टॉक एंड बुक डेट स्टेटमेंट नहीं, खाली डेट स्टेटमेंट लेना है, डेटर स्टेटमेंट। बिकॉज CA आपके डेटर जस्टिफाई कर सकता है मोर देन 90 डेज, लेस देन 90 डेज के। स्टॉक स्टेटमेंट कोई भी CA नहीं सर्टिफाई कर सकता, बिकॉज स्टॉक हमेशा सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट पे ही होता है। अभी सर लोग बैठे हैं तो एक टॉपिक पे और सर को बोलते हो थोड़ा बता देंगे कि क्या होता है ना। आप लोग कभी बैलेंस शीट अगर अच्छे से पढ़े एनालिसिस के टाइम पे, जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है उसमें क्लियरली सर लोग लिखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि स्टॉक जो है इट इज एज पर वेरीफाइड बाय मैनेजमेंट। ठीक है कपिल जी? बिल्कुल ठीक सर। तो ऐसा क्यों लिखा जाता है, जरा एक लाइन थोड़ा सा सर बता दीजिए सबको कि ऐसा क्यों लिखते हैं। क्योंकि कई लोग क्या मिसकंसेप्शन रहता है, नॉलेज नहीं है तो वो बोलते हैं जी स्टॉक नहीं दे रहा, स्टॉक स्टेटमेंट CA सर्टिफाई नहीं कर रहा। तो वो क्यों नहीं करते हैं CA सर्टिफाई, तो वो एक बार सर आपको बताएंगे। और क्यों डेटर स्टेटमेंट सर्टिफाई किया जा सकता है, तो वो थोड़ा सा सर बता दीजिए 2 मिनट। मैं बताता हूँ स्टॉक को सर्टिफाई क्यों नहीं किया जा सकता। पहला क्वेश्चन, लेट सपोज स्टॉक एक पर्टिकुलर डेट पर टेक किया जाता है। मैं कहता हूं 31 मार्च का जो स्टॉक है, इट मींस जब मेरे 31 मार्च का बिजनेस आवर्स क्लोज हुए उस टाइम पर उस बोरोवर के पास उतना स्टॉक लाइन था। अब आज लेट सपोज 7 अप्रैल है, आज मेरे से कहें कि 31 मार्च की स्टॉक स्टेटमेंट को आप सर्टिफाई कर दो। मैं पीछे जाकर तो नहीं चेक कर सकता ना उस डेट पर, पर्टिकुलर डेट पर, पर्टिकुलर टाइम पर उस बोरोवर के पास कितना स्टॉक था। तो अगर मैंने उसको सर्टिफाई कर दिया तो इट मींस माय रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सर्टिफाई कर रहा हूं कि ये करेक्ट है, जो कि पॉसिबल नहीं है चेक कर पाना। इसीलिए कभी भी स्टॉक स्टेटमेंट को सर्टिफाई नहीं किया जाता। तो फिर बुक डेट्स कैसे कर सकते हैं, वो भी तो एज ऑन डेट होते हैं। बुक डेट्स को सर्टिफाई करने के लिए जितनी भी क्रेडिट सेल है और उनके अगेंस्ट जितनी भी पेमेंट रिसीव्ड हुई है इन दी बैंक्स आइदर और इन कैश, उसको सेटल करने के बाद इजीली हम लोग बुक डेट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसी चीज को सर्टिफाई कर सकता है जिस चीज को वो वेरीफाई कर सकता है। क्योंकि मैं स्टॉक को वेरीफाई नहीं कर सकता, इसलिए मैं स्टॉक को कभी भी सर्टिफाई नहीं करता। हाँ, क्रेडिटर्स को भी किया जा सकता है सिमिलरली पेमेंट के आधार पर, और डेटर्स को भी किया जा सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम लोग हमेशा डेटर्स और क्रेडिटर्स को ही सर्टिफाई करते हैं। चलूं आगे सर? सर 1 मिनट मैं थोड़ा लूंगा, 1 मिनट आपका। हाँ जी सर। क्योंकि ब्रांचेस में क्या भी दिक्कत आती है, हम भी ब्रांच हेड रहे हैं, उसमें जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, हाँ जी। सपोज हमने किसी का स्टाफ स्टेटमेंट लिया 31 को या 31 की डेट में स्टाफ स्टेटमेंट लिया, अप्रैल के महीने में विद इन 10 डेज 5 डेज, हाँ जी। तो हाँ जी। हमें 7 तारीख तक स्टाफ स्टेटमेंट लेनी पड़ती है। बिल्कुल। और इन केस ऑफ बिग कंपनीज, क्या उनकी बुक्स क्लोज नहीं होती, उनकी बुक्स चलती रहती हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड, फॉर 2 मंथ 3 मंथ, वो अपने बिल काटते रहते हैं। हाँ जी। ठीक है ना? और जो स्टॉक स्टेट उसने पार्टी ने हमें 31 को दी है, और जो बैलेंस शीट बनी है अक्टूबर के महीने में, 8-9 महीने बाद बनी है बैलेंस शीट जाके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टाफ स्टेटमेंट गिवन बाय द पार्टी एंड द फिगर शोन इन द बैलेंस शीट। बिल्कुल। तो उन केसेस में आके जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर आता है, वो ये पॉइंट आउट करता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल। बिल्कुल। तो इसके लिए ब्रांचेस को बड़ी दिक्कत आती है, तो वी हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स कि हमें जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाउ टू जस्टिफाई विद, क्योंकि जो सीए ने बैलेंस शीट दी, वी आर ऑल एक्सेप्टेड दैट बैलेंस शीट, और जो उसने 6 महीने पहले स्टॉक स्टेटमेंट दी, उससे हमने डीपी निकाल दी उसको। तो ब्रांच हेड का बेचारा क्या कसूर है, कुछ है ही नहीं। तो थोड़ा सा इसके अंदर बताओ क्या कर सकते हैं कि ब्रांच हेड की विजिलेंट रहे इस मामले में, ताकि कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर आके कुछ निकाले ना कि यार आपने ये कर दिया। हाँ सर, मैं इसको बताता हूँ। जब भी आपको एक बोरोवर ऑडिटेड बैलेंस शीट सबमिट करता है ना, उसी डेट पर आपको एज ए टाइम ऑफ सबमिशन ही आपको उस स्टॉक को वेरीफाई करना चाहिए वेदर इट इज सेम विद द स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड और नहीं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले श्वेत सर ने भी बोला कि आप लोग कर ले, अगर वो डिफरेंस है तो आपको उसका आंसर बोरोवर से लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा डिफरेंस नहीं हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं, जेन्युइन कारण भी होते हैं और जानबूझकर भी किया गया होता है, बट उसका क्लैरिफिकेशन आपको बोरोवर से लेना पड़ेगा। अब अभी सारे फॉर्म वाले बैठे हैं, मैं बताता हूँ आपको। हमने पार्टी से पूछा कि आपने ये कैसे क्यों दिया हमें, स्टॉक स्टेटमेंट वहां कम दिया आपने बैलेंस शीट के अंदर, हमें ज्यादा दे रहे हो। तो वो सीधा सीधा बोलता है कि मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ है, ये मेरे सीए ने किया है। अब हमें कई बार अपने आप को लगता है यार वेयर वी आर रॉन्ग, तो हमें बड़ी दिक्कत आती है। ये सर ये कोई जस्टिफाइड आंसर नहीं है ना। आंसर नहीं है, हमें पता है जस्टिफाइड आंसर नहीं है, हमें पता है। फिर हम सीए से बात करते हैं तो सीए बोलता है कि पार्टी ने बोला कि मैंने टैक्स बचाना है अपना, मेरा स्टॉक। बस होता तो यही है प्रैक्टिकली। तो मतलब अब वही दिक्कत आती है कि हमारे लिए कि हम कहाँ जाएं। ये प्रॉब्लम आपको करेगा फिर जब आप उसको अगले साल रिन्यू कर रहे होंगे ना, तब आपको ये बहुत दिक्कत करेगा। हाँ, वही दिक्कत करेगा ना। तो यही हमें, मैं चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ में मेरी ब्रांचेस में जो जितनी ब्रांचेस थी मेरी, दे आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि यार कैसे करें, स्टॉक तो कम दिखा रखा है बैलेंस शीट में, उसमें स्टेटमेंट ज्यादा है। तो बड़ी मुश्किल से हमने समझाया, मतलब जैसे भी करके किया। ये सर है, ये प्रॉब्लम रहती है, और इसी का यही आपको इमीडिएटली जैसे ही वो सबमिट करते हैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन रिटर्न में लेना है। ओके। और वो क्लैरिफिकेशन भी जस्टिफिएबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख के दे दिया। नहीं, ब्रांचेस अभी नोट कर लें भैया, अभी ऑडिट होने वाला है, स्टेटस ऑर्डर आने वाला है अप्रैल के अंदर। तो ब्रांचेस प्लीज नोट दैट फाइंड कि आपको कैसे करना है। जैसे ही बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक स्टेटमेंट दिखाते हैं और जो स्टेटमेंट 31 को दिया उन्होंने, यू प्लीज टेक डाउन ऑफ दैट। बिल्कुल सर। ओके, यू मे कैरी ऑन प्लीज। थैंक यू सर। नेक्स्ट रेशियो पे मैं आता हूं। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। इससे हमें पता लगता है whether a borrower is able to repay its loan or no, either he is able to repay its interest or not, whether he is able to repay interest plus principal both or not। जब भी हम रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालते हैं तो हमें चाहिए होता है कैश प्रॉफिट अवेलेबल फॉर सर्विस। देखिए, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट की फिगर होती है उसके अंदर P&L अकाउंट के अंदर बहुत सारे खर्चे ऐसे डले होते हैं जो कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। ठीक है, वो खर्चा है, प्रॉफिट कम हो गया, बट उससे मेरे कैश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लाइक डेप्रिसिएशन, एनी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ एटसेट्रा। तो उन खर्चों को मैं हमेशा जब भी डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालता हूं तो कैश प्रॉफिट निकालना होता है। उसके लिए मुझे कैश प्रॉफिट निकालने के लिए मैं अवेलेबल प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंडिचर लाइक डेप्रिसिएशन एड बैक करता हूं, और मैं कैश अवेलेबल फॉर रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा हूं
तो जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है बैंक को वो भी एड बैक कर देता हूं। कैश प्रॉफिट निकालने के लिए जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जो प्रिंसिपल की पेमेंट कर रहा है, वो हम ऐड कर देते हैं अपने प्रॉफिट में। इसीलिए डीएससीआर निकालने के लिए जब भी बैंकर्स प्रॉफिट की फिगर लेते हैं तो जो प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स एंड डिविडेंड है उस प्रॉफिट पे मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देता हूं और जो उस बैंक को इंटरेस्ट पे किया उसको ऐड बैक कर देता हूं। फिर ये मेरा निकलता है कैश प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रीपेमेंट। एग्जांपल देता हूं, मेरी सेल थी 1000 lakhs की, मेरी डायरेक्ट कॉस्ट थी 500 lakhs, उस बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट है 500 lakhs, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 100 lakhs के, डेप्रिसिएशन है 100 lakhs का, इंटरेस्ट ऑन लोन है 100 lakhs का, 500 में से 300 माइनस करके मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 200 और मेरा टैक्स आ गया 100 lakhs, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ 100 lakhs। अब देखिए इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 100 lakhs में, इस 100 lakhs में एक तो डेप्रिसिएशन एड बैक है, तो ये डेप्रिसिएशन मेरा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन की वजह से बिजनेस से कोई कैश तो बाहर नहीं गया, वो बिजनेस में अवेलेबल है। तो ये 100 के प्रॉफिट के साथ साथ ये 100 रुपीज मेरे पास डेप्रिसिएशन के अवेलेबल है। और जो इंटरेस्ट की रीपेमेंट के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो तो मुझे एड बैक करना ही है क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ इस केस में प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट सर्विस 300 lakhs है। रीपेमेंट मुझे सीसी के केस में तो सिर्फ इंटरेस्ट ही देना है उस केस में, या फिर मुझे अगर तो इस केस में अगर मैं निकालूंगा तो आएगा मेरा डेट सर्विस कितना, टोटल 300 डिवाइडेड बाय लायबिलिटी है 100 की, इट मींस 3 टाइम्स। इट मींस जितना मेरा ऑब्लिगेशन है बैंक को रीपे करने का, मेरे पास उसका 3 टाइम्स कैश अवेलेबल है, तो मैं इजीली रीपेमेंट कर सकता हूं। अगर ये टर्म लोन है तो मुझे 100 lakhs का लोन का इंटरेस्ट भी देना है प्लस पूरे साल में 100 lakhs का प्रिंसिपल भी देना है। उस केस में मेरी टोटल ऑब्लिगेशन हो गई 200 lakhs। इस केस में मेरा डेट सर्विस कवरेज रेशियो कितना हो गया, अवेलेबल है 300, मेरी ऑब्लिगेशन है 200 की, तो 300 डिवाइड बाय 200 lakhs which results in 1.50 times। स्टैंडर्डली कहा जाता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो मेरा एटलीस्ट 1.5 टाइम्स होना चाहिए। अगर उससे कम है तो एक बोरोवर क्या एक बिजनेस में कैश क्रंच है। लेकिन कभी कभी डीएससीआर इन एक्सेस ऑफ 1.5 की जगह 1.75 भी स्टैंडर्डली लिया जाता है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं आप लोगों को क्यों लिया जाता है 1.75। हम कहते हैं पीछे हमने करंट एसेट्स करंट रेशियो के अंदर जब हम पढ़ रहे थे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, तो हमने कहा था एटलीस्ट 25% ऑफ द करंट एसेट्स शुड बी financed by long term fund. It means at least 25% of the current assets should have financed by equity share or fund. Every year कहां से आएगा, वो उसी साल के प्रॉफिट से ही आएगा। जितना हम बैंक को रीपे कर रहे हैं वो तो मुझे चाहिए ही 1.5 गुना, प्लस 25% मुझे इसलिए भी चाहिए ताकि मैं अपने करंट रेशियो को मेंटेन कर सकूं। तो 1.5 प्लस 0.25, इसीलिए मेरा डेट सर्विस कवरेज रेशियो एटलीस्ट 1.75 तो होना चाहिए। अगर मेरा डेट सर्विस कवरेज रेशियो 1.75 है तो मैं डेट तो अवेलेबल, डेट को रीपे करने के लिए तो कैपेबल हूं, साथ में मैं अपना करंट रेशियो और क्विक रेशियो भी मेंटेन कर पाऊंगा, क्योंकि उस कैश से ही मुझे वर्किंग कैपिटल जनरेट करनी है। आगे चलें, यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। जब भी हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जितने भी हैं सारे के सारे रेशियोज कंपेयर की जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल। मैंने इस सेल कितनी सेल के अगेंस्ट क्या किया।
अगर मैं कहूँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो मैंने अपनी टोटल सेल के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट कमाया, इट मींस ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। लेट्स से मेरी 100 लाख की सेल है और 20 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 20 डिवाइड बाय 100 इनटू 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। कभी कभी हम देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जब कंपेयर करते हैं, कंपनीज की बैलेंस शीट में जनरली 2 सालों की फिगर्स दी होती है, करंट ईयर की और साथ में प्रीवियस ईयर की। जब हम जनरली बैलेंस शीट देखते हैं हमें लगता है अच्छा पिछले साल से प्रॉफिट बढ़ा है तो अच्छा ही है, लेकिन क्या वो प्रॉफिट इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट ईयर से रेशियो सेम है? ऐसा तो नहीं है, लास्ट ईयर तो 2% का ग्रॉस प्रॉफिट था, इस बार 1.5% ही रह गया हो, सेल बढ़ी है तो प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट पे परसेंटेज में डाउन है तो हमें बोरोवर से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, इसका क्या कारण है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम हो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद बात करते हैं हम ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो बात करता है कि कितना खर्चा किया ऑपरेटिंग में, हमने बिजनेस को ऑपरेट करने में क्या खर्चा किया। सेम एग्जांपल में ही इस केस में मैंने 100 लाख की सेल करके 20 लाख कमाया, इट मींस 20 लाख कमाने के लिए मैंने 80 लाख का खर्चा किया, तो ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा, 80 लाख डिवाइडेड बाय 100 लाख इनटू 100, 80%। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। पहले हमने क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर देखा ऑपरेटिंग रेशियो, अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। What is the difference between gross profit and operating profit? Right now, I am talking about the operating profit, which is purely earned from the business activity. When we calculate operating profit, we do not include any income which is indirect to the. एक second. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सभी ऐसा है, जिस दो भी रेशियो निकालना है वो डिवाइड बाय सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाय सेल इनटू 100, बिल्कुल सिंपल है। इन सभी रेशियोज में, प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशियोज में आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100 वो प्रॉफिट आ जाता है, वो रेशियो आ जाता है। रेशियो अगर लास्ट टाइम से डिक्रीज कर रहा है तो हमें इसके ऊपर क्वेश्चन रेज करना है, व्हाई इट इज इन द डिक्रीजिंग फॉर्म। आज के रेशियो एनालिसिस में हम इसको यही क्लोज करेंगे और मैं इतना कहूंगा, वी ऑल आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। कभी भी किसी भी प्रपोजल में कोई भी रेशियो में कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कभी भी इजीली पूछ सकते हैं। अभी भी इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम अपने आगे के सेगमेंट पे चलेंगे। हाँ जी श्वेत जी। हाँ कपिल जी, अभी एक्चुअली क्या है ना सर, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हमारी वजह से भी हुआ सेशन, और अभी क्या थोड़ा क्लोजिंग का भी है ना सब ब्रांचेस का, तो मैं सोच रहा हूँ सर ये जो स्पेंड वाला जो अपना टॉपिक है ना उसको हम लोग उस पे बात करते हैं क्लोजिंग के बाद एक बार लेते हैं अच्छे से, है ना, सो दैट क्या, नहीं तो अभी वो ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, तो जो आपने एटलीस्ट जैसे फाइनेंशियल रेशियोज पे इतना अच्छा हमें बताया तो उसका बेनिफिट हमें मिल गया, बट वो नेक्स्ट वाले टॉपिक का बेनिफिट मिल नहीं पाएगा। तो कोई इशू नहीं है सर, है ना, क्योंकि इतना अच्छा सुनने का मौका बहुत कम मिलता है, एंड इस कारण मैं चाहता हूँ सर ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टाइम में कवर कर लें, है ना, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, है ना सर। तो नेक्स्ट टाइम आपको ज्वाइन करेंगे सर इस टॉपिक के लिए, और अभी हमारे रीजनल हेड सतीश सर भी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो मैं एक बार सर को थोड़ा सा इन्वाइट करूंगा, वो भी हमें थोड़ा अपना गाइडेंस दें,
एंड आपको सर थोड़ा सा थैंक यू कहें। Sure, sir. Thank you, sir. On behalf of Bank of Baroda, we are very thankful to you. Actually, कपिल अग्रवाल जी, very thankful भाई, आपने इतना अपना टाइम निकाल के हमारे जो यंगस्टर है, यंग जनरेशन है, उसको गाइड किया डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि एक बड़ा, एक्चुअली हमारा जो था आइडिया हमारा और श्वेत का ये था कि भाई पूरे दिन का एक प्रोग्राम हो जाए, किसी संडे या सैटरडे, बट थोड़ा अभी क्या है कि क्लोजिंग है हमारी, तो वी कांट अफोर्ड इतना लंबा, हम उसको खींच नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये नेक्स्ट मंथ में या मिड ऑफ द फेब, जब थोड़ा हमारा वर्कलोड कम हो जाएगा ब्रांचेस में, तो वी डेफिनेटली है ना रिक्वायर योर सर्विसेज, कि आप Sure, लोग का sir. जो एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद डिफरेंट बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, सबसे आप लोग थोड़ा बहुत मिलते जुलते रहते हैं, और उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी यंगस्टर है। यंगस्टर एक्चुअली क्या है अभी, ये दे आर जस्ट ओनली लर्निंग स्टेज पे है। मैक्सिमम हमारे जो अभी ग्रेड ऑफिसर हैं, दे आर बिटवीन 25 या 30 की एज में है, तो एक लंबी पारी उन लोगों को खेलनी है। तो मेरा ये था कि श्वेत से कि भाई एक बार थोड़ा ऐसा हम लोग मिलके, बैंक ऑफ बड़ौदा और आप लोग का जो ये सीए का इंस्टीट्यूशन है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे। भाई आप लोगों ने इतना बड़ा टाइम निकाला, और मैं काफी कुछ देख रहा था 15 मिनट से कि डिफरेंट रेशियोज पे, और जितना आपने उनको ज्ञान का जो वितरण किया है, डेफिनेटली जो भी काम होता है ना, वो समाज के लिए होता है। बिकॉज पर्पसली हम भी जो कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं या समाज के लिए कर रहे हैं। आप भी जो कर रहे हैं अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं, वो भी पब्लिक के लिए कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भाई कपिल अग्रवाल जी, आपको, जैन साहब को, और आपके जो चीफ गेस्ट थे मिस्टर अविनाश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आप लोगों ने इतना बढ़िया टाइम निकाला। और फ्यूचर में हम लोग आपकी जरूर हेल्प लेंगे इस दिशा में। तो जो भी आप हमारे से कुछ भी सहयोग हो, कुछ भी आपका हम लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा इज ऑलवेज वेलकम यू, और कभी भी आप लोग हमारा सहयोग लेते हैं। तो थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर श्वेत जी, और किसी को कुछ बोलना हो तो प्लीज आप। सर ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमारे साथ SMELF हेड प्रसाद जी भी हैं, RR प्रसाद जी, तो वो भी जुड़े हुए हैं। प्रसाद सर से मैं कहूँगा 2 मिनट थोड़ा सा वो गाइड करें, बिकॉज बेसिकली वो लोग भी SMELF सेल है स्पेसिफिकली, जिसमें ये SME के प्रपोजल्स हमारे प्रोसेस होते हैं। तो अगर वो हैं 2 मिनट अवेलेबल, तो मैं उनसे भी थोड़ा सा दरख्वास्त करूंगा। वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी टीम हमारी, तो दे आर मोर इनटू एनालाइजिंग। तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ सर, वो अवेलेबल है क्या। प्रसाद सर, शायद सर हो सकता है अभी वो लीव हो गए हो। थैंक यू सारस जी एंड द टीम, और आपकी सेवाएं सर अभी थोड़ी नहीं ले पाए हैं, पूरी नहीं हुई है ना। तो टैक्स प्लानिंग वाला जो टॉपिक है ना, जो थोड़ा बेसब्री से सब इंतजार करते हैं, उसको हम लोग दोबारा फिर आपके साथ नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, है ना। जैसा सर ने कहा कि बैलेंस शीट एनालिसिस और वो, उस पे एक बार थोड़ा सा और हम लोग जुड़ेंगे। एक सेकंड सर। हेलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर एक्सलेंट सेशन, एंड रियली आवर टीम फील ऑब्लाइज्ड कि उनको कैसे पता लगा कि कैसे काम करना है, कि छोटी-छोटी चीजें होती हैं। और कई हमारे ऑफिसर ऐसे जिन्हें पता नहीं क्विक रेशियो क्या होती है, करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, फंड डाइवर्जन क्या है। तो ये चीजें आपने जो बताई है, वेरी डीपली बताई है। तो रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, और फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तो ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। you, sir. मैं सतीश कुमार यादव जी, रीजनल हेड करनाल रीजन के, श्री DPS भाटिया जी, डिप्टी रीजनल हेड करनाल रीजन, श्री RR प्रसाद जी, हेड SME लोन फैक्ट्री करनाल रीजन, श्री श्वेत गुप्ता जी, क्रेडिट हेड करनाल रीजन, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। सर आप जुड़े, हमें इनवाइट करा, हमें एक सेशन करा पाए। मैं श्वेत जी के साथ आई थिंक काफी बार मैं संपर्क रहा कि सर करते हैं, तो श्वेत जी ने बिल्कुल मना नहीं करा, उन्होंने तुरंत कहा कि सर ये तो बहुत जरूरी है और हम इसको करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो सर हमारी जितनी भी हायर अथॉरिटीज है, स्पेशली हमारे RM सर, DRM सर, मतलब एंड दे आर ऑलवेज कि आप लोग जितना नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन करें, जितना करें वो बहुत अच्छा है। और मतलब सर लोगों ने, मतलब मुझे कई बार डिसीजन लेने में सोचना भी नहीं पड़ता, बिकॉज इतना मुझे कॉन्फिडेंस है सर लोगों पे कि दे ऑलवेज टेल कि जितना नॉलेज आप बांट सको बांटो। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर। Thank you, Saraj ji. अग्रवाल जी, थैंक यू। Thank you, sir.